हेलो बेटा, हेलो। Good morning, sir. Good Yeah. morning, sir. Yes, good morning everybody. My sound reaching you? Yes, sir. Right. Yes, see beta. Yesterday evening time I sent some work. I hope that work would be reached to you. बेटा कल हमने कुछ वर्क भेजा था, होमवर्क गया था क्या आपके पास? Yes, sir. आया राइट था. राइट राइट। चलिए सी, आप बोर्ड पे देख रहे हैं यूनिट नंबर आपका 9 है, राइट? तो ध्यान दीजिएगा, 9-7 हो रहा है, आप ध्यान रखिएगा 45 पे क्लोज कर दिया जाएगा, राइट? यानी 40 मिनट, जस्ट कंप्लीटिंग द 40 मिनट, इट मींस द 9:50 पे, राइट? यस सी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम इन 8 लेसन which I taught you yesterday? Hello? No, sir. No problem. No, sir, no problem. Right. So no problem. Okay, beta. See there. Before you read means before starting your study, it means these lessons. You can see there given sublines, there are related these lessons. So see which type this question, these lines raise some problem, some information, question in front of us. इसको देखते हैं क्या दिया है. Can you name some desert areas in India and the world? It means sure you have seen different type the animals nearby your area, other places, zoo or other state. Sometimes ago, if you find chance to visit there anywhere, अगर आप कहीं पहले गए हो, विजिट किए हो, तो sure you have seen different type the wild animals, pet animals, and sure you will be familiar and you have a lot of information related this type or those type the animals. क्या आपने पहले कभी कुछ जानवरों को देखा है, उनके बारे में जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, कुछ डिटेल बताएंगे तो जानते हैं तो टेल मी. यस एनीबॉडी, कुछ जानवरों के नाम बताएं जिनके बारे में आप जानते हो, आपने कहीं देखा हो, कहां देखा हो, कैसे देखते हैं, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उनका साउंड कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है. इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, एनीबॉडी टेल. बोलो बेटा. स्नेहा गुप्ता एंड ये शिवानी सिंह, नाम थोड़ा सा हल्का सा दिखाई दे रहा है, सूर्यान सिंह है, और ये अगला बच्चे का नाम क्लियर नहीं आ रहा. एनीबडी से कृति मिश्रा, एनीबडी? Sir, dog. राइट, Yes, डॉग. sir, Sir, ये तो dog. domestic है. Yes, this type of animal you can see very easily nearby your area. इसके Yes, अलावा sir. That is snake. Sir, cow, buffalo. ओके बेटा, Cow. कुछ वाइल्ड Goat. एनिमल के नाम बताएं. Sir, वाइल्ड goat, parrot. जंगली सर जानवर. उनके कैरेक्टरिस्टिक भी बताने हैं. हाँ बता सकते हैं, इफ यू नो यू कैन टेल. Sir, lion, tiger, Sir, wild crocodile. pig, crocodile, cheetah, Sir, इन giraffe, सबको देखे कहाँ है? elephant, Sir, zebra. kangaroo, Is it zebra. possible that any student has found the chance earlier to visit the different type zoo? हो सकता है पहले हुई चिड़ियाघर विजिट किए हो, तो they have seen this type the animals and Yes, so sir. already Yes, sir. Sir, white leopard. wild animals. Sir, Have white you, tiger. have you seen before any type snacks? Yes, sir. Yes, sir.
Sure Yes, sir. you will be see very easily nearby your area. आपके घर के आसपास भी कई बार Yes, देखने sir. को मिल जाते हैं. Yes, sir. Sir, Yes, sir. ox, cow. Yes, sir. चलिए राइट. आइए देखते हैं और इसमें क्या दिया लिसन. Who do you think lives in such area? Who do you think lives in such area? किसको आप सोचते हैं कि इस प्रकार के एरिया में, इस प्रकार के क्षेत्रों में रहते हैं? कौन से जानवर रहते हैं? किसके बारे में आपको कुछ जानकारी है, नहीं है? आइए हम इसमें देखेंगे. इट मीन्स सर कैमल्स तो रहते हैं, डेजर्ट में पूछ रहे हैं तो कैमल्स तो रहते हैं उसमें. बिल्कुल रहते हैं. कैमल्स रहते हैं, टाइगर रहते हैं. सर स्नेक No, भी sir. रहते हैं. डेजर्ट में तो टाइगर नहीं रहते हैं ना, स्नेक Very रहते हैं. good. Very good, beta. Very good. Now see next line in your book. Right? See. Deserts animal. Deserts means that area there is only a lot of area covered by sand. That area is waterless. You can't see See, desert. Desert means Registan. रेगिस्तान. Yes. Are you hearing yes, me? sir. Hearing me? Yes, sir. Yes. So what is desert? Listen. Desert is that place which area is covered by only sand, right? That area is Sand. waterless. Very hardly you can see the water. And that area, how the any living creature, that may be wild animals, snake, cows, or as well as human, how they survive their life without water, you can know this matter very deeply in this lesson, right? इस लेसन हम जानेंगे कि किस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं, अन्य जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वर्ड्स हैं, हाउ दे सर्वाइव दियर लाइफ, अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं. दिस टाइप द एटमॉस्फेयर, इट मींस वाटरलेस एरिया, बिना पानी के क्षेत्रों में कैसे सर्वाइव करते हैं. तो लेट अस सी डिस्कस. एनिमल्स दिया गया है, जानवर, यानी रेगिस्तानी एरिया के जानवर वो कैसे सर्वाइव करते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पैसेज. प्लीज सी. Deserts are the driest place on the earth and sometimes go for months or even years without rain. Listen here. Desert are the driest place on the earth. ये बताया गया है कि जो desert place होता है सॉरी, जो डिजर्ट प्लेस होता है वह पृथ्वी पे एक ऐसा प्लेस होता है ड्राइएस्ट. ड्राइएस्ट मीन्स सूखा हुआ. इट मीन्स वाटरलेस. इट मीन्स वेरी हार्डली यू फाइंड द वाटर. इट मीन्स वेरी लॉन्ग टाइम, मंथ, होल ईयर्स देयर इज नो रेन, यानी वहां पे वर्षा ही नहीं होती है. डिजर्ट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे केवल आप सैंड पाएंगे, बहुत महीनों तक, सालों तक वर्षा नहीं होती है और हमेशा जो है वह सूखा हुआ पाया जाता है. इट मीन्स देयर इज नो वेट, नो मॉइस्चर, वहां पे कोई नमी नहीं पाई जाती है. तो इन दिस वे एरिया, इन दिस टाइप एरिया, दिस टाइप द प्लेस इज अंडर द डिजर्ट आर कॉल्ड द डिजर्ट. उसको डिजर्ट कहा जाएगा, कहा जाता है. But even the desert animal cannot survive without water. Here the writer want to describe us that this type the area, it means desert area, there is no possibility to any animal to live very long time. Reason is this that no water, no life. जहां पर पानी नहीं है वहां पर जीवन संभव नहीं है. तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इस प्रकार के एरिया में बिना पानी का एनिमल को रहना, जीना या किसी भी जीव जंतु को रहना पॉसिबल नहीं है. रियली नॉट पॉसिबल, राइट. नेक्स्ट सी. आर फॉर लॉन्ग पीरियड इन द स्क्रोचिंग सन. स्क्रोचिंग का मतलब होता है वेरी हॉट. सन मीन्स धूप का, सूर्य का. इट मीन्स ड्यूरिंग द डे टाइम when the sun began to shining, that period the temperature is very high and it is very hard to bear this type the heating, this type the hottest place area. It means वहां पे रहना संभव नहीं है.
no water, it means when the sun began to shine, that period every animal feels very hot, unlimited hot, extremely hot. It means can't live there. वहां पे रह नहीं सकता, इतनी गर्मी बढ़ जाती है। बेटा समझ रहे हैं क्या हमारी बात को? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ, यू आर completely understanding what I am teaching to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We are समझ में आ completely रहा है। understanding. Okay, thanks, beta. Next. So they have had to find different way to coping with the harsh condition. ध्यान दीजिएगा. So they have had to find different way of coping. Coping का मतलब होता है जूझना. जूझने का मतलब है किसी समस्या से लड़ना, फाइट करना, उसका मुकाबला करना। उसकी मीनिंग जो आपको दिया गया है, कोपिंग जो वर्ड है, इसका मीनिंग यही है, जूझना, सामना करना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहां पे इतनी कंडीशन, हार्श मीन्स कठोर, कंडीशन मीन्स स्थिति, वहां की स्थिति इतनी कठोर हो जाती है, कठिन हो जाती है, माइजरेबल हो जाती है, दयनीय हो जाती है कि वहां पे हर प्रकार के, इट मीन डिफरेंट टाइप एनिमल्स who are living there, they have to face a lot of problem during the sunny time. यानी खास तौर से दिन के समय में सूर्य निकलने के बाद अस्त होने से पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ ऑल एनिमल, इंसेक्ट एज वेल एज बर्ड आल्सो। जितने भी लिविंग क्रिएचर उनके सामने बहुत विकराल समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं विदाउट वाटर हाउ पॉसिबल टू लिव देयर, संभव ही नहीं है। तो देयर आर मेनी टाइप प्रॉब्लम क्रिएट इन फ्रंट ऑफ दोज एनिमल्स आर ह्यूमंस एंड अदर इंसेक्ट आर बर्ड्स, बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है, जैसे कि कुछ हम एनिमल्स के आप देख सकते हैं, बुक में नेक्स्ट आने वाला है वर्ड, यानी एग्जाम्पल, गर्बिल स्पेन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बुरोज। ये गर्बिल, दिस इज द वर्स्ट टाइप एनिमल, यह जानवर होता है। स्पेंड व्यतीत करता है, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे मीन्स सनी टाइम, it means when the sun come out the temperature begin or go very high, that period, उस समय, if that गर्बिस want to cool, यदि वह ठंडक चाहता है, शीतलता चाहता है, मॉइस्चर चाहता है, for this reason he go underground, ये ब्रोज जो दिया गया, बिरोज भी कर सकते हैं, ये बील होता है, माद कर सकते हैं, यानी एक ऐसा ये बील होता है जिसके माध्यम से वो नीचे चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, एंड दे फील्स कूलिंग देयर, और वहां पे उनको ठंडक महसूस होती है। वेन, कब चले जाते हैं? इन डे, दिन में, व्हाइल द सन बिगन टू शाइन, जब सूरज चमकने लग जाता है, धूप हो जाती है। Students, are you hearing me and understanding? Yes, sir. We are Yes, hearing sir. and understanding. We are hearing and understanding. Right. And strange insect circling beetles are expert in catching drops of moisture on their legs. ध्यान दीजिएगा। एंड स्ट्रेंज इस इंसेक्ट, इसके अलावे जो विचित्र, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, अजनबी, इंसेक्ट बोलते हैं कीड़े मकोड़ों को, राइट। काल डार्कलिंग बीटल्स, जिनको काल कीट कहा जाता है। डार्कलिंग बीटल्स की मीनिंग है काल कीट के भी नाम से इनको जानते हैं। दे आर एक्सपर्ट एंड कैचिंग ड्रॉप्स, वे एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है। दे कैन कैच द ड्रॉप ऑफ वाटर, वे पानी के बूंदों को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। मॉइस्चर, नमी को ऑन दियर लेग्स, अपने पैरों से। ध्यान दीजिएगा, हियर द राइटर वांट टू डिस्क्राइब दैट देयर आर डिफरेंट टाइप इंसेक्ट that is called the darkling beetles. They are so expert that they can catch the drop of water in his legs. यानी अपने पैरों के माध्यम, पैरों की हेल्प से, जैसे हमारा हैंड्स है, हाथ के माध्यम से किसी को कैचिंग करते हैं, like this they also use their legs as a hands
and they catch the drop of water, पानी के बूंदों को पकड़ लेते हैं, उस पे रोक लेते हैं, किसमें? in their legs. Doubt? बोलिए. No sir. No, sir. No doubt. No doubt. No doubt. Then No, sir, no doubt. listen, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouth. उस जो पैरों में जो ड्रॉप्स को पकड़े हुए होते हैं, then lifting them into the air, उसको ऊपर कर लेते हैं, ऊपर की ओर, इसको उस पैर को, एयर मींस हवा में, and until the drops trickle down into their mouth, और उसको तब तक ऊपर किए रहते हैं, इस हिसाब से किए रहते हैं कि that drops fall down into their mouth, कि वह जो ड्रॉप्स है, पानी का बूंद है, वह सीधे उनके मुख में न चला जाए. इस तरीके से बैलेंसिंग their legs, they also go it is upside until that drop not reach into their mouth, जब तक कि उनके मुख में नहीं चला जाता है. In this way they fulfill, they complete their thirst. इस तरीके से अपनी प्यास को क्या करते हैं? बुझाते हैं. Next, not all desert are endless sea of rolling sand dunes. ये दिया गया कि not all the desert endless, यानी बहुत से ऐसे डिजर्ट, मीन्स ऑल डिजर्ट, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू दे आर कनेक्टेड टू द सैंड, यानी लगातार या अंत तक केवल सैंड हो. दिस इज नॉट कंपल्सरी. कहीं कहीं भी कुछ डिस्टेंस के बाद दे आल्सो स्टार्टिंग द सॉइल, मिट्टी भी शुरू हो जाती है. नॉट ओनली सैंड, केवल आपका रेत ही नहीं होता. रोलिंग सैंड एंड ड्यून्स, ये दिया गया हीप सैंड फॉर्म बाय द वाइंड. इट मींस, ये बताने की कोशिश किया गया है, इट मींस राइटर डिस्क्राइबिंग हियर दैट देयर आर सम डिजर्ट, दे आर डिफरेंट टाइप, एंड देयर आर सम एरिया हु इज कवर्ड बाय या वेरी लॉन्ग हाई प्लेसेज. उसको हीप बताया गया. इट मींस बाय द हेल्प ऑफ विंड या स्ट्रॉन्ग विंड गैदर द सैंड एज अ वेरी हीप साइज, यानी ढेर लग जाता है, जिसको हम हिंदी में टीला भी कह सकते हैं. आपने देखा होगा कहीं कहीं पर या टेलीविजन के माध्यम से. और इफ यू फाइंड टू चांस टू विजिट दिस टाइप एरिया, स्पेशली राजस्थान, you can very easily see this type area. There is some part which are very high places, and there those places are only the sand, and this type the stature, yeah, this type the area is covered and made by the strong winds. हवा के द्वारा जो है उसको इकट्ठा कर दिया जाता है, किसको? रेस को. और वे टीला का रूप लेते हैं, बड़े बड़े प्लेस जैसा दिखाई देते हैं और अप डाउन करके शो होते हैं. तो इन दिस टाइप द एरिया इज कॉल्ड द डंस. राइट, डंस मींस हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर, रेत का ढेर कर सकते हैं. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkling with colorful flowers during the spring. Here also the writer describes that some are rocky or pebbly. It means desert area, some areas are rocky. Rocky से मतलब होता है चट्टानी, right? It means you can see there some area is connected the rocky कर सकते हैं. rocky मतलब चट्टान, जिसमें बड़े बड़े चट्टानी स्टोन पत्थर होते हैं, right? As well as pebbly. pebbly का मतलब होता है कंकड़ीला, कंकड़ पत्थर. In this type area you can very easily see this type area. It means रेगिस्तानी area, it means desert area. It means especially the Rajasthan state, right? If you find chance in future, sure you will see. Otherwise, you can also see on the Google's this type the situation. अब आगे देखिएगा next. And dotted, dotted का मतलब होता है कहीं कहीं पर, right? With small bush, it means you can see. small bush का मतलब होता है छोटी छोटी झाड़ियां. It means this desert area not very high. It means long plants you can see, but also very short plant, green grass very easily, and that bushes, while others are sprinkling. Sprinkling का मतलब होता है कांटेदार, थ्रोनी कर सकते हैं, यानी छोटी छोटी
टाइप के एरिया में आपको झाड़ियां मिलेंगी, जो कटीली झाड़ियां होती है, छोटे छोटे उसमें थ्रोन्स होते हैं, कांटे होते हैं, विथ कलरफुल फ्लावर्स। और इसके साथ साथ यू कैन सी देयर डिफरेंट टाइप द फ्लावर्स आल्सो, डिफरेंट कलर्स, विभिन्न रंगों में आपको फ्लावर्स दिखाई देंगे। ड्यूरिंग द स्प्रिंग, इट मीन्स बसंत ऋतु के दौरान, it means you can see that if you find chance there, you will find there very small plant that is called the bushy, that is also thorny. Thorny means कांटेदार, and you can see also there different type of flowers which are different color also. वहां पे विभिन्न प्रकार के फूल विभिन्न कलरों में देख सकते हैं। तो दिस टाइप सीन यू कैन सी ओनली इन द स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु में ऐसा आपको सिर्फ दिखाई देगा। Any problem? No, sir, no problem. No problem. No problem. Right. See there. Next passage. There are more than 2,300 different kinds of snake around the world. Latest we are going to discussing related or spice or kinds of snakes. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वर्ड में जो है, इस वर्ड में 2300, इस मीन्स 2300 टाइप्स स्नैक्स यू कैन फाइंड, राइट। इतने काइंड्स के जो है हमारे वर्ड में, दुनिया में सर्प पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। It means their length start from 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर कम से कम उनकी लंबाई होती है, एंड मैक्सिमम 11 मीटर्स। यू कैन सी दैट their height, their length, लेंथ बोलेंगे यहाँ पर, their length minimum 15 सेंटीमीटर and maximum 11 meters. Whose length? Snakes. Most snakes are quite harmless, but there are a few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. Listen here, most snakes are quite harmless. It means there are some snakes who never bite. Harmless का मतलब होता है नुकसान रहित, it means never bite. बहुत से ऐसे सर पर वो निकल जाते हैं। किसी को काटते नहीं है। यस बेटा। सर पर वो स्नेक निकल जाते हैं। सर इस स्नेक का 15 सेंटीमीटर क्या होता है? उनको लेंथ बताया गया, लेंथ। सर तो वो उसका शुरुआती तो का लेंथ होता है। आपने कई बार देखा होगा जहाँ पे कई बार छोटे छोटे मतलब ये जंगल टाइप के होते हैं, या जहाँ पे कूड़ा कचरा। यस सर। यस तो सर। बहुत छोटे छोटे आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं, कई बार उसके अलग अलग वर्ड आते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं सनकातर, उसको बोलते हैं, राइट। देखा होगा आपने ऐसे। ये सर छोटे छोटे सांप के बच्चे होते हैं ना। हाँ हाँ, तो इस तरीके से जो है ऑल आर द स्पाइस या काइंड्स ऑफ स्नेक, ये सभी जो है सर्पों के क्या है, ये प्रकार है। उनका और हाइट ज्यादा हो, यानी लेंथ ज्यादा होता है, उनकी जो आपकी मोटाई होती है, ब्रीथ होती है, वो ज्यादा होती है, तो अलग अलग साइज के दिए गए होते हैं। अभी बहुत से ऐसे स्नेक आपने देखा होगा या हमने भी देखा होगा कि अभी हम लोग नहीं देख पाए हैं, तो देयर आर मिनिमम लेंथ एंड मैक्सिमम लेंथ आर गिवन हियर, राइट। यस सर। तो सर उनका शुरुआती होता है 15 सेंटीमीटर ना, जब बच्चे होते हैं तो। जब बच्चे होते हैं तो। यस सर, वही तो। यस सर। चलिए, एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलिए अब आगे देखते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। इसमें हमने ये बताया कि बहुत से ऐसे सर्प हैं जो नेवर बाइट टू एनीबॉडी, किसी को काटते ही नहीं है, राइट। एंड देयर आर सम स्नेक्स हु आर so poisonous that if they bite once time, एक बार में वे काट दे तो there is no chance to live, जीने का कोई भी चांस नहीं है। तो वही आगे दिया गया है, but there are few that are so poisonous they can kill human being
with just one bite. But there are some snakes who are so poisonous if in any way, in any condition, he bites is human or any animals, anybody. मनुष्य को नहीं, किसी जानवर को भी, किसी को भी अगर वो काट ले तो वेरी हार्डली सेव दियर लाइफ. इट मीन्स नेवर सेव दियर लाइफ, बचाया नहीं जा सकता. रीजन इज दिस दैट दे आर सो पॉइजनस एंड वेरी शॉर्ट टाइम their poison spread whole parts of body that may be any human or any animal. जिसको काटेंगे कुछ ही पल, कुछ ही मोमेंट में जहर फैल जाएगा और बचाना संभव नहीं. नेक्स्ट, most snakes lay eggs. It means mostly snakes lay eggs, वे अंडे देते हैं, right? But there are many which give birth to their youngs. But there are some snakes they directly birth, यानी सीधे वो बच्चे का जन्म देते हैं. तो in this way you can know their life history. It means snakes. In the dry, rocky desert of America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation. Listen here. But there are many which give birth to their youngs in the dry. Dry का मतलब होता है सूखे एरिया में, right? There is no moisture. Rocky desert. Rocky means जहाँ पे चट्टान, पत्थर, stones जहाँ पे पाए जाते हैं, that area. That area is also called the rocky desert. उसको रेगिस्तानी, कैसा रेगिस्तानी? चट्टान रेगिस्तानी क्षेत्र कहा जाता है. And this type the area is found in America. अमेरिका में इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाएंगे, इस प्रकार के रेगिस्तान आप जो इसमें पढ़ रहे हैं. This type the area is found only in America. Lives a rather evil looking snake. यानी वहां पे भी जो सर्प पाए जाते हैं with very bad reputation. वे जो है बैड का मतलब बुरा, रेपुटेशन मीन्स उनकी प्रसिद्धि, यानी कहने का मतलब वो गलत तरीके से जाने जाते हैं. गलत का सेंस मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि दे आर आल्सो वेरी पॉइजनस, दे आर वेरी डेंजरस फॉर एनी लिविंग क्रिएचर, राइट? इट्स फ्राइटेनिंग रैटल कैन बी हियर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे. इट मीन्स रैटल का मतलब होता है साउंड. रैटल मीन्स द साउंड ऑफ स्नेक, यानी सर्पों की जो आवाज होती है, दैट इज कॉल्ड द रैटल्स. Here the writer want to describe us that if you want to hear their sound, which sound? Snakes. Which snake who are live in the America desert area, rocky area. तो वहां पे उनकी आवाज इतनी फास्ट होती है, इतनी लाउड होती, इतनी तेज होती है कि you can hear their sound near about 30 meters distance. आप जो है 30 मीटर दूर से ही उनकी आवाजों को सुन सकते हैं, इतने तेज बोलते हैं. एंड दे आर सो फियरफुल, दे आर सो डेंजरस, वेरी हार्डली एनीबॉडी ट्राई टू रीच देयर और एनीबॉडी ट्राई टू सी हियर. उनको देखना, उनके पास जाना बहुत मुश्किल हो जाता. नेक्स्ट, एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड. ध्यान दीजिएगा. एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड. और जो उनकी गति होती है, जो वे अटैक करते हैं अपने प्री शिकार को, जिसको वे मारना चाहते हैं, जिसी को शिकार करना चाहते हैं. लाइटनिंग स्पीड, जितनी फास्ट लाइट की होती है स्पीड, प्रकाश की जो इतनी स्पीड होती है, उसी तरीके से इनकी स्पीड होती है. पलक झपकते ही वेरी फास्ट दे कैन कैच देयर, अपने शिकार को तुरंत पकड़ लेते हैं, इतने फास्ट होते हैं. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी फास्ट उनकी स्पीड होती है, गति होती है. नेक्स्ट, बट द रैटल स्नेक्स आर रादर rattler, as it is sometimes called, prefer to avoid people if it possible can. ये दिया गया है कि but rattle snake are rather as it is sometimes called prefer. कई बार जो है इस प्रकार के जो स्नेक्स होते हैं
उनको पेपर्स में कई बार उनको लोग लाइक करते हैं, अन्य टाइप के कुछ होते हैं सर जिनको कुछ लोग लाइक करते हैं। रीजन इज दिस दैट दे आर नॉट हार्मफुल, वे नुकसान करने वाले नहीं होते, यानी उनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो ऐसी स्थिति में दिस टाइप द स्नेक्स आर लाइक्ड, उसको लोग पसंद करते हैं, राइट। अब आगे इसमें देखेंगे, टू अवॉइड पीपुल इफ इट इज पॉसिबल कैन, यदि जो है वह लोगों को देखे, कहने का मतलब ये है कि देयर आर स्नेक्स दे नेवर try to bite to anybody, but also when they hear the sound of man or see the man or any person, अगर उनको एहसास होता है, उनको देखते हैं कि कोई है, they automatically they itself move from their particular place to other place for safety, वह स्वयं को बचाने के लिए वहां से मूव हो जाते हैं। इट मीन्स तो सर स्नेक कैसे अधिकतर अपना प्रोटेक्शन करते होंगे? मान लीजिए सर अगर कोई रास्ता नहीं है और कोई आ रहा है इनको बाइट करने के लिए, तो कैसे अपना प्रोटेक्शन करते होंगे? पॉइजनस स्नेक तो पॉइजन फैला देंगे सर बॉडी में। और यस, वेरी गुड आंसर। जैसे मान लीजिए जिस रास्ते से आप जाना चाह रहे हैं, राइट, यस you सर, want to pass anyway any route, and in that route already any snake is lying there and you are compelled to pass that route, so there is one option, you should come back or you should wait until that snakes not move from there. If you are hurry, in spite of there is only one option, return back or you should wait. If not follow these two steps, it means you are in danger. Any happen with you in that period, आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है, तो लाइफ से बढ़कर के कोई दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होता। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फर्स्ट ऑल ऑफ यू शुड सेव योर लाइफ, प्रोटेक्ट योर लाइफ, राइट। कई बार ऐसा होता यस है, सर, जैसे मान लीजिए आप कोई रास्ता किसी जंगल एरिया से होकर के गुजरता है और अनफॉर्चुनेटली like a python or others snakes who are very poisonous, and if they are crossing that road and you are moving that also that road, if you see from long distance, you should stay, you should stop, you should not move toward the next step. Reason is this that they are so dangerous, they are so speedy that if you go very near they can attack at you, वे आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इफ एनीबॉडी ट्राई टू टॉर्चर देम, यदि उनको कोई छेड़ता है तो देयर इज ओनली वन द बेस्ट ऑप्शन दैट यू शुड वेट और रिटर्न बैक until they are not pass or not cross that road. यही ना विकल्प है। यस सर, यस, बताइए आप लोगों की क्या आइडिया, व्हाट इज योर आइडिया, व्हाट इज योर व्यूज? If suppose you are standing there, if you are going this type of areas and suddenly any very dangerous or like a pythons, other snakes are Yes, sir. passing, तो what will you do there? आप क्या करेंगे वहां पर? Yes बेटा, tell something. सर पहले उसको क्रॉस कर लेने देंगे। Yes, Sir, I yes. will- There is the best option that you Cross कर should do there. I Right? will best उसको क्रॉस कर लेने देंगे या फिर हमें लोग रुक जाएंगे या फिर कम बैक वहां से भाग जाएंगे। वहां से आ जाएंगे। Yes, yes. This is the last option. नो सर, भागने पे और सर वो दौड़ाने लगते हैं सब। तो मतलब धीरे से छुप छुप के आ जाएंगे। धीरे Right. से आ जाएंगे। Yes, okay बेटा, see the next. चलिए, thanks. It hold its tail, listen next. It hold its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed. देखिए ध्यान दीजिएगा, it holds its tails upright. It means sometimes if anybody try to disturb them, sometimes they hold its tails का मतलब अपने पूंछों को रोक देते हैं, पकड़ लेते हैं, stopping situation में कर देते हैं। When if anybody try to disturb, anybody try to torture them, यदि कोई छेड़ता है उनको
डिस्टर्ब करता है तो कई बार जो अपने आप को बिल्कुल साइलेंट मोड में कर देते हैं, अपनी पूंछ को बिल्कुल अपने साइड में या फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन दे कैन क्रिएट। इट मींस ओनली फॉर देयर ओनली सेफ्टी, वे केवल अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कर जाते हैं। कई बार आपने देखा Yes, sir. कोई छोटे मोटे कोई कीड़े हैं, कोई एनिमल्स हैं, you suddenly without indication, without pre-information, if you try to teach or if you are try to torture or reach very near in that period, what happen? क्लास मॉनिटर के पास है, क्लास मॉनिटर के पास। ओके बेटा, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. sir.